Good morning, students. Today we will study Unit 2nd, Lesson Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. This lesson is related to Nelson Mandela. Students, do you know about Nelson Mandela? First of all, I will tell you about Nelson Mandela, then his story, how he struggled for his country. Nelson Mandela was born in Transkei on July 18, 1918. He was a South African anti-apartheid revolutionary and politician who served as President of South Africa from 1994 to 1999. He gained international acclaim for his anti-colonial, having received more than 250 honors, including the 1993 Nobel Peace Prize. He is often described as the father of the nation. Unfortunately, Mandela died of a lung infection on December 5, 2013. Then I introduce this lesson. This chapter is an excerpt from the autobiography of Nelson Mandela, born 18 July 1980, the first black president of South Africa. In Long Walk to Freedom include description of a inauguration ceremony, citation from the speech, his journey to being a freedom fighter, a struggle, along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. In South Africa, a brutal practice named apartheid was followed. Apartheid referred to the discrimination between people on the basis of their race. It was one of the most brutal societies where dark-skinned people were deprived of their basic rights. This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their ways to a society where there will be no discrimination of the basis of their color, caste, age and gender. बच्चों, ये लेसन ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला के द्वारा रचित। इसमें नेल्सन मंडेला जब पहली बार राष्ट्रपति बने, प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के बने, उस दिन के शपथ समारोह के बारे में बताया गया है। उस दिन देश के गणमान्य लोग और विश्वव्यापी नेता लोग वहाँ पर उपस्थित हुए उनके शपथ ग्रहण समारोह में। वो देश जो साउथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को तोड़ चुके थे, वहाँ की अपार्थाइड नीति के कारण बाद में उन देशों ने भी, जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तो उन देशों ने भी प्रतिभाग किया। अपार्थाइड का अर्थ होता है बच्चों श्वेत व्यक्तियों के द्वारा शासन करना। साउथ अफ्रीका में श्वेत व्यक्तियों के द्वारा ही शासन किया जाता था। वहाँ अश्वेत व्यक्तियों को यातना दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें किसी प्रकार का भी अधिकार प्राप्त नहीं था और उन्हें अगर विद्रोह करने पर, विरोधी होने पर उन्हें जेल पर भी डाल दिया जाता था। नेल्सन मंडेला ने बहुत सालों तक अपने जीवन में संघर्ष किया। उन्होंने देश में इस तरह की रंग भेदी, नस्ल भेदी भावनाओं से देश को आज़ाद करने के लिए कई सालों तक संघर्ष किया और 20 वर्षों तक जेल में रहे। जब शपथ समारोह हुआ, उस समय नेल्सन मंडेला ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया और अपने देश के महान व्यक्तियों जिन्होंने इस प्रकार की भावनाओं को दूर करने के लिए संघर्ष किया, उनको भी याद किया, स्मरण किया और ये भी कहा कि अब हमारे देश में एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही रंग का, ना रूप का, ना ही किसी प्रकार की जाति का, ना लिंग के,
इस किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान भाव से व्यवहार किया जाएगा। Summary of the lesson. The lesson began with a description of the inaugural ceremony which took place on the 10th May 1994, which the entire nation, among with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. It involves speech by the president and two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. Long ago, in the first decade of the 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life of a living hell for the dark-skinned population. It gave rise to one of the most inhumane society of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who could not live to see the autumn day. He referred to the people as the greatest asset of the country. It is these people who gather his courage from. Mandela believed that courageous is not man who is fearless, but the man who overcomes fear. He also mentioned the two responsibilities toward the society. His obligation toward his family was neglected. He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. It was then he joined the African National Congress and fought for his right till he became the first black president of the nation. According to him, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. As soon as the former robs the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. Thus, the oppressor too is not free. बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था, उनकी आत्मकथा से ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये उस समय की कहानी है जब उद्घाटन समारोह हो रहा था 10 मई 1994 को। वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पूरे राष्ट्र के महान व्यक्तियों के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय नेता भी उपस्थित हुए थे, जो इस नई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार की जीत को स्वीकार कर रहे थे। यहाँ पर राष्ट्रपति और 2 उपराष्ट्रपति के भाषण होने थे। इसके लिए वहाँ पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर द्वारा शानदार प्रदर्शन भी किया गया। बहुत पहले 20वीं शताब्दी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व ने रंग भेद की व्यवस्था का परिचय दिया था, यानी वहाँ पर श्वेत वर्चस्व ही कायम था और गहरे रंग के आबादी के लिए जीवन को नरक बना दिया गया था। यानी वहाँ पर जितने भी ब्लैक स्किन वाले पीपल थे, वहाँ पर उन लोगों पर बहुत ही यातनाएं की जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था, उनको कोई प्रकार के भी अधिकार नहीं दिए गए जाते थे और उन्हें सभी प्रकार से काम लिया जाता था और उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था। इसने दुनिया के सबसे अमानवीय समाजों में से एक को जन्म दिया। कई लोगों ने बुनियादी मानवाधिकार के लिए संघर्ष और बलिदान भी किया। नेल्सन मंडेला ने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देने की इच्छा व्यक्त की। इस शुभ अवसर पर वो व्यक्ति जो लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया था, वो भी अब जो जीवित नहीं थे उनके लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नागरिक ही देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। व्यक्ति पर 2 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, एक समाज के प्रति और एक अपने परिवार के प्रति। लेकिन जब व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का अधिक निर्वहन करने लगता है तो वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेगलेक्ट करने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि
स्वतंत्रता का विचार फिर उन्होंने अपने एक नेशनल अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए तब तक संघर्ष करते रहे जब तक कि वो एक राष्ट्रपति के रूप में चुने नहीं गए। बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ के सारांश के बारे में पढ़ा। कल हम लोग इसका एक्सप्लेन टेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।